महाराष्ट्र छोड़ के एक मराठी आदमी आमदार दिखाओ, खासदार दिखाओ, इतर स्टेट में दिखाओ ना, एक दिखाओ. इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप मुझे बताइए कि इतना दादागिरी है, लोगों को जबरदस्ती आज की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई मस्जिद से बाहर इसी इलेक्शन के चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। Hello everyone, you are watching Lokmat Times and I am your host Gaurang and exploring the BMC elections in the entire Mumbai city. We are now here at Arthur Road. Exactly to be specific, this is the Subhash Nagar area of the Arthur Road. We have a few candidates over here. We will talk to them and understand how according to them is the BMC elections going on in the Mumbai city. Ma'am, first of all, BMC elections are now being conducted after 8 long years. So how is the entire environment and how are you charged up for the next few days? Okay, first of all, our candidate is Mrs. Rupal Rajesh Kusle, and Rajesh Kusle ji was Shakha Pramukh of Shiv Sena for good long years. And as long as elections are concerned, everybody was waiting for the same. Political parties, political karyakartas were waiting, and at the same time, even common people were waiting because few things were, demanded कि people should be elected and few things can be done through them only. So people were waiting, and everybody is happy that finally it's happening. So, talking about the citizens in Mumbai, there were a lot of controversies going around the election campaigning. The first point I would like to ask you, the mayor of the Mumbai city, मराठी आदमी ही चाहिए या फिर दूसरा कोई और चलेगा, इस पर आप क्या कहोगे? मराठी ही चाहिए. What is the exact thought behind this? The exact thought behind this is, see, we are in Maharashtra, and a person should be able to speak well Marathi, must understand well Marathi. See, we have seen that there are many states in India where the local language has the significant impact. So it should be in Maharashtra. So this is one reason we are expecting that Marathi mayor should be there. And another thing is, yes, by, you know, I want people to speak Marathi. So if Marathi mayor will be there, it will be good for us. Also now after age long 17 years, both the brothers, the Raj Thackeray and Uddhav Thackeray have come together. So do you feel that alliance will affect your party and your candidate? Absolutely not. It is because, see, these two brothers have come together and now they are saying that we have come together for Marathi people. So my question is to them that what happened when Nagarpalika elections were there? At that time, Marathi Manus was not important for them. And even if I go little back, then see, it is Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray's Shiv Sena. And we have a very, that emotional corner for it. So if these two brothers were separated, so on what ground they were separated, people have not forgotten that. And if today they are coming together, then definitely they are coming together for the new generation to settle down in the politics. So as we were moving around the streets of Mumbai to know what people feel about the upcoming BMC elections and their entire thought about the elections, we are now in Worli, another kingpin area of the Shiv Saiниks. So we have with us another citizen who has been working with Shiv Sena for a long time. Sir, मेरा सबसे पहला ये सवाल आपको ये होगा कि सबसे बड़ी चर्चा ये की जा रही है कि आज राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों बंधु साथ में आए हैं, तो इन दोनों का साथ में आना क्या मराठी मानुस और मुंबई के शिवसैनिकों के लिए एक अच्छी संकेत है? इसमें बहुत बड़ी अच्छी संकेत है और बहुत बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ पे दोनों भाई आपस में जो लड़ाई कर रहे थे पहले, वो एक साथ हो गए. बहुत बड़ी हम सैनिकों के लिए, मन सैनिकों के लिए और जो भी है आम जनता के लिए जो कार्रवाई जो कामकाज किया जाता है उसके लिए बहुत बड़ी स्वागत है यहाँ पे जो एकत्र भाई आ गए थे. तो क्या मैं ये समझूं कि अब दोनों भाइयों के साथ में आने के बाद जो अन्य पार्टियां हैं जिनका दबदबा बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है, उन पे आप सब हावी होंगे? श्योर हो गए. So as we were exploring the elections in Mumbai right now, we are in Dadar. I have another resident over here. I'll talk to him and try to understand what are his views on the upcoming elections. Sir, इस बार इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस के आने के पहले बहुत से मुद्दे बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं. सबसे पहला मुद्दा, मुंबई का जो मेयर होगा, जो महापौर होगा, वो मराठी होना चाहिए या फिर नॉन मराठी आदमी चलेगा? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, जिसकी जहाँ जितनी संख्या बल होती है उस कास्ट का मेयर बैठना स्वाभाविक है. मगर हम रहते मुंबई में,
मराठीवासी हैं, आज ज़माने से यहाँ रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मेयर मराठी ही बैठे, मेयर बैठे, नगर सेवक चुन के आए, ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए, किंतु उसमें एक समस्या है। समस्या किस प्रकार से कि आज तक लोग जो नगर सेवक हमने चुन के दिए थे पिछले चुनाव में, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और सर जिस तरीके की आज डेमोक्रेसी पूरे भारत भर में हम देख रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ भी की जा रही है। लेकिन इस पे मेरा एक महत्वपूर्ण ये सवाल है, आपने देखा होगा 62 से ज़्यादा सीटें बिन विरोध चुनकर आई है। सर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप मुझे बताइए कि इतना दादागिरी है, लोगों को ज़बरदस्ती में आज की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई मस्जिद से बाहर इसी इलेक्शन के चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। बट सर बहुत सारे जगहों पे ये भी देखने को मिला है कि कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पक्ष है उनके उम्मीदवार ही नहीं है। तो क्या फिर ये आपकी एक स्ट्रैटेजी थी या आपके पास शॉर्टेज था कैंडिडेट्स का? सर कोई शॉर्टेज नहीं था सर। सर कांग्रेस इस देश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बिना आदमी खड़ा नहीं हो सकता, कोई कितनी भी बातें कर ले। आप, मेरा चैलेंज है आपको उस बात के लिए, आप जिला और तालुका निर्धारित करिए, अगर 50 आदमी कांग्रेस का आपको नहीं निकल गए तो मैं जो बोलेगा वो हार जाऊंगा। मगर जिस प्रकार से प्रताड़ना करना, डराना और कई कई चीज़ों से उनको डरा के पीछे ले, ये कर वो कर, उस प्रकार से जो ये सत्ता का जो दुरुपयोग चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक डराने वाली बात है। डिक्टेटरशिप का जो सदन में लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर है, तो वो डिक्टेटर नहीं, वो किंगडमशिप लाना चाह रहे हैं वापस से इस देश में। तो क्या मैं ये समझूं कि फिलहाल जो परिस्थिति भारत और खास करके मुंबई में चल रही है वो डिक्टेटरशिप है? सर मैं मुंबई नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ सर। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आज महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है, मुंबई में अगर आपको रहना है, तो आपको सिर्फ मराठी ही भाषा में बात करनी चाहिए? देखो कैसा रहता है सर, अभी मैं समझो यूपी में जाएगा क्या बिहार में जाएगा तो उधर का जो कुछ है, उधर के रीति रिवाज रहता है, उनकी बोली भाषा रहता है, तो हर स्टेट का अलग अलग रहता ही है ना। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे को बोलना ही चाहिए, लेकिन तुम कोशिश करो ना। और सर अभी जैसा इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के बाद अगर समझिए जो रिजल्ट है वो अगर आप जो सोच रहे हो उसके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या फिर एक बार ये दोनों भाई अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। मुंबई का जो महापौर है वो मराठी ही चाहिए या फिर नॉन मराठी अगर कोई आदमी हो तो चलेगा? अभी कैसा होता है सर, ये मुंबई है, आलं लक्षात ना, मुंबईमध्ये ज़्यादा किसका हे चलता है, भाषा चलता है, मराठी भाषा चलता है। अभी समझो बीएमसी का ऑफिस है, सब है, ये है आया में ना, तो उधर मराठी है तो मराठी अभी बोला ना गुजरात में या उधर उधर तुम बिहार उसका बात छोड़ो, लेकिन महाराष्ट्र छोड़ के एक मराठी आदमी आमदार दिखाओ, खासदार दिखाओ, इतर स्टेट में दिखाओ ना, एक दिखाओ कि भाई उधर मराठी आमदार है, उधर मराठी खासदार है किधर? मग हमारे इधर भी क्यों?